Hello everyone, welcome to Indian Start Times, India's third largest startup focused media platform, powered by 16 media professionals from Hindustan Times and beyond. With over 18 years of collective expertise, we have spotlighted more than 10,000 innovators like you. With over 7 lakh monthly impressions, 70,000 plus subscribers, and a buzzing community across LinkedIn, Instagram, YouTube, and more where we bring you inspiring stories of founders, innovators, and emerging startups shaping the future of India. So today we are joined by a founder who is redefining the way India looks at clean and chemical-free food products. From delivering fresh oils, ghee, and spices within just 15 days of manufacturing to building a transparent bridge between farmers and consumers. His startup is creating a strong impact in clean label food industry. So today, Mr. Yogesh Chowdhury, the founder of Gios Organic Farm, has joined us in this interview, and with him, my senior colleague, Mr. R. Chandra, is also joining this interview. So, hello, Mr. Yogesh, welcome to the interview, and thank you for joining. And hello, Mr. R. Chandra, thank you for joining. Hi, Yogesh. It's a great pleasure to have you with us So, today for the interview. hi everyone. Thank you for inviting me. So, Yogesh, to start, of course, I think the most important would be to know about your background, your journey, and how do you become an entrepreneur, and that too in the line of organic farm, organic products that you are trying to build across. So, please, would be happy to know more about your background and then your journey as an entrepreneur. So, please go ahead. So, Chandra, first of all, thank you. And before starting this Zyros Organic Farm, I was teacher and I have taught more than 20 lakh of students. I was teaching for mechanical engineering competitive examination like GATE and engineering services. And during my teaching, there were lots of students who were facing problems, and I was directly connect with the स्टूडेंट्स और उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे वो हमें जब बात करते थे तो दे वर फेसिंग प्रॉब्लम कि हाँ सर, हमारे घर में इशू आ रहा है, हमारे जो फादर हैं उनको कुछ इस टाइप के इश्यूज हैं, मदर्स को इश्यूज हैं, एंड दिस वाज नॉट कि हमने उस टाइम पे भी थॉट दिया था। ऑब्वियसली वंस जब कोविड ने हिट किया तब हमने इस पे थॉट देना शुरू किया। तो ड्यूरिंग कोविड जो स्टूडेंट्स थे, तब जब उनके कोई फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स इन लोगों ने जब इशू फेस करना शुरू, उन्होंने बताया कि नहीं, अ, ऐसा बहुत हमारी सर जो स्टडी है ना वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो रही है। हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट जनरली वैसा रहता था कि हम वन टू वन कनेक्ट करते थे। हमारे पास जो ग्रुप था वो अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स का था, तो वहाँ पे हमारी डायरेक्ट बात होती रही। तो हमने सर्च करना शुरू किया कि भाई क्या हो रहा है। इट वॉज नॉट अबाउट कि उनको कोविड ही हुआ था, इट वॉज कि कोई किसी को बीपी की इशू था, किसी को शुगर का इशू था, कोई हार्ट इश्यूज की वजह से, हार्ट डिजीज, बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस थी। तो मैं फिर इस पे थॉट देना शुरू किया। हम डिस्कशन भी करते थे स्टूडेंट के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है कि आपके फैमिली में। तो देयर वाज अ कनेक्शन कि फूड और डिजीजेस का। वहां से थॉट आया कि कुछ हमें फूड पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि 10 ईयर्स बैक या 5 ईयर्स बैक तो हम एक टीवी पे ऐड देखते थे और ऐड के बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि हाँ प्राइस कितना है। अगर हमने प्राइस देख लिया तो हमने फूड परचेज कर लिया। तो जस्ट लाइक दैट, तो हमने कहा कि नहीं, इस पैटर्न को चेंज कर, पहले तो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उस पे काम करना है कि ये फूड आपको परचेज क्यों, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी का उस आपके हेल्थ पे। रीजन ये दिया कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें प्राइजेस नहीं मिलते हैं। बिकॉज हम चाहे पेस्टिसाइड वाली फार्मिंग करें, केमिकल वाली फार्मिंग करें, या हम नेचुरल फार्मिंग करें, हमें प्राइस तो सेम ही मिलने हैं। तो हमें तो वहां से है कि नहीं, अभी कुछ और करना है। ये कॉम्बिनेशन कि जब भी चाहे मार्केट में पानी की बोतल ले रहे हैं, कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन मिल रहा है, फूड जो ले रहे हैं वो भी अडल्ट्रेशन है, फार्मर्स भी यही बोल रहे हैं। तो वहां से थॉट आया कि नहीं, क्लीन फूड ब्रांड लॉन्च करते हैं। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स जो है वो हम कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे और फ्रेश सप्लाई करेंगे। बिकॉज जब भी हम नेचुरल फूड्स की बात, नेचुरल फूड हमारे कंज्यूमर को जितनी जल्दी उतना जल्दी कंज्यूम हो जाए, बिकॉज कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज। तो दैट वाज द टाइम जब हमने जायरोस ऑर्गेनिक फार्म्स को स्टार्ट किया था। इट वाज जस्ट कि हमारी जो टीचिंग जर्नी है, मैं उसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। आई टॉट मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स। उनके जो थॉट थे, हमारे जो थॉट थे, और वहां से फिर आइडिया आया कि यस, अभी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन एक बिगर मास को दे, कंज्यूमर्स को दे, फार्मर्स को। इसके आप जो भी अपने फार्म पे कर रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दैट्स हाउ जायरोस ऑर्गेनिक फार्म स्टार्टेड
फ्रॉम फार्म टू फोक ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी प्रोडक्ट जाएगा विद इन 14 डेज वो मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर सप्लाई होगा। ऑल्सो इस बेनिफिट कंज्यूमर को, तो साथ में हमारे साथ जो फार्मर्स कनेक्ट हो रहे हैं उन सबको बेनिफिट होना चाहिए। सो इवन वन बॉटल या वन स्पून उसकी हैप्पीनेस हमारे टॉप टू बॉटम सब। आई थिंक ये आपका आई थिंक बहुत बहुत सोच है एक आपकी इसके पीछे, एक हेल्दी फूड, एक क्लीन फूड लोगों तक पहुंचाना, ताकि क्योंकि हम जो आजकल कंज्यूम करते हैं उस पे कुछ कुछ पेस्टिसाइड्स होती हैं, केमिकल्स होती हैं मिक्स। तो ओके, तो अभी अभी हमें 30,000 कस्टमर्स को सर्व, एंड हमारे जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं वो रेफरल बेसिस पर ज़्यादा हैं। जो भी कंज्यूम करते हैं तो फिर जो रेफर करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमारे रेफरल बेसिस पे कंज्यूमर ज़्यादा हैं रादर देन कि हम उनको डायरेक्ट किसी कंज्यूमर को टारगेट। हमारे कंज्यूमर्स ही हैं जो अपने फ्रेंड्स फैमिली उनको टारगेट करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपके लिए ज़रूरी है। वैसे तो देखा जाए 3.5 ईयर टाइम हो गया, बट हमें नहीं पता चला कि अभी इतना टाइम हुआ है। सो वी आर एंजॉयिंग दिस जर्नी। नहीं, ग्रेट। तो अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा इसमें कि आपका जैसे अ, तो इसमें ऑफ कोर्स ये स्केलेबल कितना है? एक तो ये जानना है, ये कितना स्केलेबल है, और उतना इसको स्केलेबल बनाने के लिए कितना ज़्यादा आपको और मतलब क्या इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा उस चीज़ को बनाने के लिए? प्लस दूसरे तरीके से बोला जाए तो आप दोनों एंड को, कंज्यूमर एंड को भी और साथ-साथ में जो फार्मर्स हैं, जो उनको दोनों को एजुकेट कर रहे हैं। बिकॉज़ अभी फार्मर्स में भी ये काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने बताया भी था कि वो चीज़ों को ग्रो तो मतलब कर रहे हैं, बट जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी जाएगी, और उनको जो वैल्यू भी आउटपुट मिलना चाहिए, वो भी उनको अच्छा मिलना चाहिए, तभी कोई करेगा। एक लॉन्ग टर्म विज़न भी होना चाहिए इसके पीछे। ये सब करने में आई थिंक आप इसके पीछे काफ़ी मेहनत मेहनत लगती होगी। या ऑब्वियसली जब हम फार्मर से कभी बात करते हैं, बात करने तक ठीक है, फार्मर सुनते हैं, बट उनका जो ट्रांजिशन रहता है, बिकॉज जब भी हम किसी खेत की बात करते हैं, फार्म लैंड की बात, उसकी जो सॉइल है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में, लाइक अगर हम उसको हमें उसको पेस्टिसाइड फ्री करना, तो मिनिमम 3 इयर्स इट टू रीच इनटू ओरिजिनल पोजीशन। तो जब भी फार्मर से बात करते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग करना शुरू, तो फार्मर्स थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं कि मैं 3 साल क्या करूं। जैसे ही वो फर्स्ट ईयर करते हैं तो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन बहुत कम रहता है, तो जब प्रोडक्शन कम रहता है तो कहीं ना कहीं से ये डर जरूर रहता है कि यार अगर प्रोडक्शन कम होगा फिर हमारा कैसे चलेगा। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप प्रोडक्शन करो, आपका जितना करंट प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उनको एश्योर करते हैं, इसमें एश्योर करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्शन करोगे बट आप नेचुरल प्रोडक्शन करो। एंड हम उनको प्रॉपर विजन देते हैं, नहीं है कि हाँ ठीक है आप करोगे हम आपसे परचेज कर लेंगे। हम प्रॉपर विजन ये देते हैं कि अगर आप इसको करते हो लॉन्ग टर्म में, ये प्रोडक्शन आपका वैसा ही होगा जैसा अभी आप कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड, विद द हेल्प ऑफ जो भी केमिकल्स हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल करना शुरू करोगे तो ये सस्टेनेबल भी है, आपकी लैंड भी हमेशा सेफ रहेगी। दूसरा, जब एक साथ काम करेंगे तो इट इज नॉट अबाउट फार्मिंग, इट इज अबाउट कि हम जो लोग हैं उनको बेटर सर्व कर पाएंगे। सो इनिशियल टाइम पे जब भी फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टफ रहता है, बट धीरे धीरे लोग समझते हैं। बहुत इनिशियल स्टेज पे बिकॉज़ हाँ, वो क्योंकि एक आपने जैसे पहले स्टार्टिंग जहाँ करी कि वहाँ से आपको थोड़ी मुश्किलें तो एक आपका जब लाइक लोगों को पता लगा कि हाँ, नहीं, कि जो आप फार्मिंग बता रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग करना, और वो ज़्यादा बढ़िया है एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, तो आई थिंक वहाँ फ़ॉलो किया डेफिनिटली। ग्रेट विज़न आई वुड से योगेश। डेफिनिटली ये हमारे अभी की सोसाइटी में लोगों के लिए और आने वाले सोसाइटी में डेफिनिटली एक बिकॉज़ हमें उतनी आदत है नहीं है प्योर खाने की। हमारे हर चीज़ में कुछ न कुछ तो मिला ही हो, बट अगर हम ऑर्गेनिक की प्योरिटी, और आप ऐसा कर भी रहे हैं ऑलरेडी, और आपके जो कस्टमर बेस है, वो रिपीट कस्टमर आई थिंक आपको बताता है कि आपके प्रोडक्ट्स में कितना मतलब इसमें अगर कस्टमर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। तो कैसा अभी तक पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू की बात है, रिपीट कस्टमर्स कितने हैं आपके? अभी हमारे पास मोर देन 50% कस्टमर जो हैं वो रिपीट रहता है, या 50% कस्टमर जो है वो न्यू रहता है, 50% हमारे रिपीट पे। बेसिकली हम अभी रिपीट पर ही चल रहे हैं। जनरली जो मार्केट का ट्रेंड है उससे हमारा रिपीट काफी अच्छा है। एंड फोकसिंग की हमने, हमारा जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेम क्वालिटी जो हमने प्रॉमिस की वो हम लाइफ टाइम दे एट लास्ट तक।
वैसे योगेश आपने स्टार्ट किया, चूँकि अगर हम ऑर्गेनिक फूड के सेक्टर में जाते हैं, किसी भी फूड सेक्टर में अगर कोई भी फूड या फिर कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो लोग तो आपको उस जगह क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसे आपने लोगों में ट्रस्ट बिल्ड कराया कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं कि 14 डेज़ के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है, या आप कैसे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड? फर्स्ट थिंग ये रहती है जब भी किसी कंज्यूमर के पास के लिए ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एक अगर मैं बात करूँ पहले जैसे मैंने अभी भी बात की थी कि पहले लोग डायरेक्टली प्राइस और एडवर्टाइज़मेंट बट अब लोग प्राइस एडवर्टाइज़मेंट मीन्स केवल पेट भरने के लिए खाना नहीं परचेज़ कर। अब जो फूड प्रोडक्ट्स लोग परचेज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर जानना चाहते हैं कि मेरा फूड कैसे बना। ऑब्वियसली सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों को बताया है कि आपको लेबल भी पढ़ना चाहिए, आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने का सिंपल सिंपल फंडा है, हम लोग कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं। कंज्यूमर को जब भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो हम कंज्यूमर से डायरेक्ट बात करते हैं कि आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज़ किया है या आपको जानने की ज़रूरत है कि वो प्रोडक्ट बना कैसे? हमारा फर्स्ट जो इंटरेक्शन रहता है वो कंज्यूमर के साथ यही रहता है। इवन चाहे वो प्रोडक्ट फार्म टू फोर्क जाए उसका कंप्लीट हम वीडियो उसको भेजें, कंज्यूमर चाहे तो विजिट करना चाहे तो हमारे यूनिट्स पे विजिट, अदरवाइज अगर वो प्रोडक्ट बना है तो उसका जो भी प्रोसेस है हम स्कैनर भी देते हैं कि आप स्कैन करें डायरेक्टली। तो बेसिकली हर थॉट ये रहता है कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई कंज्यूम कर रहा है और उसको अगर यही नहीं पता है कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ तो फिर कहीं ना कहीं से मिस्टेक होती है। अब थॉट प्रोसेस है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करने में टाइम, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं रिगार्डिंग योर फूड जो कंज्यूमर के घर में जा रहा है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है। बिकॉज़ अभी आज के टाइम में होता है कि लोग जनरली मतलब थॉट अगर किसी को कार खरीदनी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, हमेशा रिसर्च करता है कि मुझे कौन-सी कार लेनी है, उसकी कितनी केयर करनी है, लेकिन जो उसकी बॉडी है, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट इंजन है, ये कभी रिसर्च नहीं करता है। तो हम हमेशा यही थॉट देते हैं कि आपको इस पे थॉट देना है कि कार तो ठीक है, आप 1 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे चेंज, लेकिन ये इंजन वन्स अगर ये डैमेज हुआ तो ये इंजन सही नहीं होता है, और अगर सही होता है फिर इसका सही होना ही बहुत महँगा है। तो रादर देन इसको खराब करने से बेटर आप इसको सही रख, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी और बिलीफ एवरी टाइम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है, वो हमारा कंज्यूमर का एक पर्सनल रिलेशन है, जो हमारे साथ अभी तक है और चला जा रहा है आगे, जो हमें लगता है कि चलता रहेगा। जब भी कोई भी कंज्यूमर नए भी कंज्यूमर आते हैं, उनको भी कैसे ट्रांसपेरेंसी के, और यही एक रीज़न रहता है किसी भी ब्रांड के लिए जिसको स्केल करना है कि आप कंज्यूमर के साथ ट्रांसपेरेंट कि आप उसको क्या दे रहे हो। तो जैसे अभी आपने स्केल की भी बात की, तो इंडिया में जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट है वो तो ग्रो कर रहा है। अगर हम देखें तो लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बट आपके हिसाब से ब्रांड्स उनको स्केल करने में काफी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन से बिगेस्ट रीजंस हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड ब्रांड को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक सस्टेनेबली? मेरे अकॉर्डिंगली भी कोई ब्रांड स्टार्ट होता है, देखिए हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी ब्रांड, तो हम कभी कुछ सेल्फ प्रोमिसेस करते हैं और कुछ कस्टमर से प्रोमिसेस करते हैं। तो ब्रांड हमेशा प्रॉमिस करता है कि हमने इस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया है और हम इस विजन को ले, कंज्यूमर भी उसी विजन के साथ, आप जो भी कंज्यूमर आपके विजन के साथ अलाइंड है वो शुरू से आपके साथ आता है कि ठीक है, आप स्मॉल बैचेस में प्रोडक्ट को बना रहे थे, आपका प्रोसेस ये है, इस प्रोसेस के साथ आप इस प्रोडक्ट को लेके जाने वाले। अच्छा, जब कंज्यूमर जुड़ता है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है, आप भी हैप्पी होते हैं, वो और किसी को रेफर करता है और धीरे धीरे आप स्केल करना वंस जब स्केलेबिलिटी बहुत कुछ ऐसा हो गया कि अब आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना है, आपके कंज्यूमर ज्यादा हो गए हैं, तब आप जो शॉर्ट प्रोसेसेस थे, मतलब प्रोसेसेस स्मॉल बैचेस के प्रोसेसेस थे, अब आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको हम ना फैक्ट्री प्रोसेसेस की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है। लाइक अगर मैं घी की बात करूं, तो घी का एक प्रोसेस है कि आपने सुबह मिल्क लिया, मिल्क के बाद अगर आप बिलोना घी बना रहे हैं तो आपने पूरे दिन मिल्क को 5 to 6 आवर्स के लिए गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर उसको 3-4 आवर्स के लिए ठंडा किया, फिर उसमें जावन लगाया, दही बनने के उसको सुबह बिलोना किया, फिर मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म किया। तो ये 26 से 27 घंटे का प्रोसेस है। बट होता क्या है कि ये प्रोसेस बहुत सारे ब्रांड्स शुरू में फॉलो करते हैं, जैसे स्केलेबिलिटी पे बात आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, कमर्शलाइज कर देते हैं इसको, अब हम बड़े स्केल पे करना है, अब मटके तो पॉसिबल नहीं है। लोग वो मटके बढ़ाने की बजाय, यूनिट की कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय डायरेक्टली वो फैक्ट्री मेड पे राइट। और वहीं कंज्यूमर का जो आपके विजन के साथ अलाइन पे वो फिर वो डगमगाना शुरू करता है। हमारे साथ बहुत सारे कंज्यूमर्स आते हैं जो यही बोलते हैं कि अगर मुझे वो इंडस्ट्री फूड खरीदना था, अगर मुझे वही आपसे लेना था, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड पहले से थे जिनसे हम ले रहे थे। हम आप पर स्विच ही इसलिए हुए थे कि मुझे वो प्योर क्लीन फूड मिलेगा
और फिर अब आप धीरे-धीरे जब आप अपने रास्ते से भट जा रहे हैं, तो फिर हम आपके साथ क्यों हैं? तो अगर आपको स्केल करना है, ऑब्वियसली जिस विज़न के साथ आप चलें, उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम है। और यही मोस्ट ऑफ द ब्रांड के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि वो फ्रेशनेस, वो ट्रेडिशनल मेथड, प्योरिटी वो अब योगेश, नेक्स्ट सवाल आई थिंक आपके ना, आपने बताया भी जैसे ग्रियोज ऑर्गेनिक फार्म है वो फॉलो करता है डिसेंट्रलाइज माइक्रो यूनिट मॉडल। तो ये फैक्ट्री फर्स्ट अप्रोच से अपने मतलब इसी मेथड को क्यों चूज किया इस? देखिए हमें भी कभी पता था कि हम स्केल करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम जब स्केल का टाइम आएगा, प्रोडक्शन बढ़ाना, तो हमने डे वन से क्लियर किया था कि हम ना फैक्ट्री फर्स्ट अप्रोच पे नहीं, रीजन बिहाइंड कि हमें फ्रेशनेस पे फोकस करना था। सो वी आर द ब्रांड जो हम 14 डेज के अंदर अभी, तो हमने सबसे पहले यही थॉट दिया कि अगर बाई चांस हम फैक्ट्री लगाते हैं, लेट सपोज हम किसी फैक्ट्री से या तो कनेक्ट करते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि वो जो फ्रेशनेस है कि हाँ आपको 14 डेज के अंदर प्रोडक्ट देना है, वो स्टेल स्टॉक हमारे फिर शेल्फ पे पड़ा रहेगा, हमारे वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। तो दैट्स वाई हमने फर्स्ट तो ये थॉट दिया कि नहीं, हमें प्रोडक्ट को स्मॉल बैचेस में बनाना है। दूसरा, मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि विलेज में बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्क करना चाहते हैं ऑब्वियसली, और अभी जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं मूव कर रहे हैं कि उनको सिटी में मजा आ रहा है, वो इसलिए मूव कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज उनको लगता है कि वहां पे ज्यादा है। तो हमने ये भी थॉट दिया कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज उनको विलेज में, तो एक तो उनको हेल्प हो जाएगी, दूसरा हम जो कंज्यूमर्स को देना चाह रहे हैं वो हम कंज्यूमर्स को बहुत इजीली दे पाएंगे। अच्छा, अब हमने जब यूनिट्स लगाना, हमारा थॉट ये था कि पहले एक माइक्रो यूनिट हमने फार्मर को एक एसओपी दी कि आपको इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना, और विद इन अ वीक जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट आप हमारे वेयर हाउस पे लेके आ जाएंगे या हम वहां से पिक करा लेंगे। इससे क्या हो रहा है कि वो छोटे बैचेस के प्रोडक्ट जितने भी हमारी जरूरत होती है उतने बनते हैं, वो हम कंज्यूमर को इजीली सप्लाई कर पाते। अगर हम यही फैक्ट्री डाल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो ऑब्वियसली कहीं न कहीं से वेयर हाउसेज़ में पड़े रहे, फिर हम उनको वो जाता तो कंज्यूमर्स को ही कहीं न कहीं से। तो एट द एंड लॉस किसका होता? कंज्यूमर का। अब इससे 2 बेनिफिट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स को वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स फार्मर्स को जो हेल्प चाहिए थी, वो एक्सपर्ट थे कि हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और हम आपको सप्लाई भी कर सकते हैं। हम वहाँ पे 8-10 फार्मर्स, 20 फार्मर, 50 फार्मर को अपने साथ कैटर कर सकते। तो उससे फार्मर्स को भी हेल्प मिल गई कि हमें विलेज में ही काम। दूसरा, हमारा जो एम था कि हम दोनों को कनेक्ट कर पाएँगे, स्केल हम करने का हमने यही प्लान किया था कि जैसे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे एक माइक्रो यूनिट है उसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं। हम करेंगे कि अगर हमारा डिमांड बढ़ रही है तो हम माइक्रो यूनिट्स बढ़ाएँ। एक रीजन में एक फार्मर है जो काम कर रहा है ऑलरेडी 50 फार्मर्स के साथ, वहाँ पे वो अदर 50 फार्मर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमारा पूरा इंडिया में क्रिएट होगा, जिसके थ्रू हम हर रीजन के वो बेस्ट प्रोडक्ट लेके आएँगे और कंज्यूमर्स को सब। सो योगेश, एक कंज्यूमर के एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती है? तो कैसे वो अपनी शेल्फ लाइफ मेंटेन करते हैं? तो कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस और साइंस बिहाइंड दिस? देखिए अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो केमिकली प्रोसेस्ड है तो ऑब्वियसली उसकी शेल्फ लाइफ बहुत हायर है। बट अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो शेल्फ लाइफ उतनी तो नहीं रहती है जितनी केमिकली प्रोसेस की रहती है। बट स्टिल अगर हम किसी कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ केवल इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो ऑर्गेनिक है, उसकी सेल्फ लाइफ इस पे भी डिपेंड कर रही है कि कितना वो हाइजीनिकली बनाया गया है, मॉइस्चर कंटेंट कितना था, हमने उसकी पैकेजिंग किस तरीके से की हुई है। तो जनरली मतलब हम केयर करते हैं कि हम इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से करें, इसको प्रॉपर्ली क्लीनली बना के दें और कंज्यूमर्स तक हम भी ट्राई करते हैं कि विद इन मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम पहुंच जाए। तब तक लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट है मिनिमम 6 मंथ की, 7 मंथ्स की सेल्फ लाइफ रहे, तो हम कंज्यूमर्स को यही बोलते हैं कि आप 6 मंथ में उतनी सेल्फ लाइफ तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी भी कम नहीं रहती है कि कोई कंज्यूम ना। सो या सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स में लॉजिस्टिक और फ्रेशनेस आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन क्लीन लेबर फूड बिजनेसेस। कितना डिफिकल्ट है डिलीवर आपको फ्रेश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचाना और ऑपरेशंस को एफिशिएंसी से। ऑब्वियसली देखिए लॉजिस्टिक जो एक मतलब एक सेकंड पार्ट है, जो बिजनेस का एक सेकंड व्हील है, मैं बोलूं अगर 4 व्हील में एक व्हील की बात करूं तो वो लॉजिस्टिक है जो इसको हैंडल करता है। अगर मैं बड़े ब्रांड्स की बात, तो ऑब्वियसली उनके पास क्या रहता है कि प्रोडक्ट है, पूरा ट्रक्स हैं जो जा रहे हैं, वो दूसरे वेयर हाउस में हैं,
बट हमारे साथ क्या रहता है, हमारे साथ लॉजिस्टिक ही है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोडक्ट बना और बनने के बाद मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम हमारे वेयर हाउस पे आया और उसके बाद अगले मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम में हमने कंज्यूमर्स को सप्लाई किया। कंज्यूमर्स के घर तक डिलीवर करना और हमारे यहाँ पे बनना, ये जो टाइम है 14 डेज का ही तो दैट्स वाई फॉर अस लॉजिस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो फास्टेस्ट लॉजिस्टिक हो उसको, उसके थ्रू हम कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स करें, या हमारे वेयर हाउस, हमारे जो यूनिट है उससे हमारे वेयर हाउस तक भी जो भी लॉजिस्टिक हम यूज कर रहे हैं वो फास्टेस्ट लॉजिस्टिक हो। तो हमारे लिए ऑब्वियसली लॉजिस्टिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड हमारे जैसे जो भी ब्रांड्स हैं उन सब के लिए लॉजिस्टिक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अ, आपका डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट है आप कितना फास्टली कंज्यूमर तक सप्लाई कर पा रहे हैं। अगेन वही जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें भी आपने बोला था कि हाँ इसकी सेल्फ लाइफ जो है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो नहीं है कि आप 6 मंथ अपने सेल्फ में रख लेंगे उसके बाद कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे। तो देयर शुड बी अ मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम। योगेश, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए आपके उसमें मेरे को मतलब वो ये जहाँ आपने बताया कि लॉजिस्टिकली और ऑपरेशन, आई थिंक ऑपरेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज चीज़ों को टाइमली डिलीवर करना, उसका पूरा मेंटेन करना, देखना हर चीज़ का, तो उसकी में ऑपरेशनल टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन टीम का होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि एफिशिएंटली जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं उन तक टाइमली, तो वो मैनेजमेंट के लिए भी आई थिंक आप लोगों को काफ़ी मतलब उसको फ़ॉलो करना पड़ता होगा, प्लस एक कुछ ट्रैकिंग सिस्टम आपका होगा, जो आप यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास हमने जो एसओपी सेट कर रखी हैं फार्मर्स के, हमारे पास अभी तो ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, बट यस वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रैकिंग सिस्टम। हम एक बैकएंड ऐप हम डेवलप करा रहे हैं जिसके थ्रू हमारा जो भी फार्मर्स के थ्रू प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कब प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद कब हमारे यूनिट पे आया, जब टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग होने के कितने दिन में हमारे पास आया। वी आर वर्किंग कि हाँ जब एक हायर स्केल पे जब हमें इसकी नीड रहेगी तो हम उसके लिए अभी से रेडी हो रहे हैं। बट फिलहाल के लिए पास जो ट्रैकिंग रहती है, क्योंकि जो भी फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट आई थिंक कुछ आपने ली भी है, राइट? आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इसमें फंडिंग आपको मिली है। तो इन्वेस्टर्स के तौर पे एज़ एन ऑर्गेनिक, जहाँ पे कि आपको दोनों चीज़ें देखनी है, क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देखनी है, प्लस उसकी स्केलेबिलिटी भी देखनी है, बिकॉज़ आपको एज़ एन मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा कि आप में वो इन्वेस्ट करें, और उनको एक तरह का मतलब भरोसा मिले कि नहीं यार, ग्रोज ऑर्गेनिक फार्म्स ये अपना विजन के साथ में चलेगी आगे 4 साल, 5 साल, 10 साल या आगे लाइफ टाइम तक। तो उस चीज़ के लिए आप क्या मतलब इन्वेस्टर्स के सामने क्या पिच रहती है आपकी, और कैसे उनको आप भरोसा दे? लास्ट टाइम भी जब भी हम इन्वेस्टर से कनेक्ट हुए थे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर भी हमें समझ पाए। जैसे हम इन्वेस्टर के सामने रख, देयर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, वन की आई एम इन्वेस्टिंग, आई डोंट नो एनीथिंग कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो या हमने इन्वेस्ट किया है तो उसके रिटर्न्स। एंड अनदर इन्वेस्टर की नहीं यार आप कुछ बहुत, तो इसको किस वे में क्रिएट करना है और हम इसको इसमें हेल्प करते हैं। जैसे हमारे इन्वेस्टर उन्होंने हमें पहले तो ये कि हमने जब विजन बताया कि हमारा विजन ये है, इट इज नॉट अबाउट कि हम केवल प्रोडक्ट को, इट इज अबाउट अ ट्रस्ट कि कंज्यूमर जब हमें 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद, तो देयर शुड बी अ ट्रस्ट कि इनके प्रोडक्ट ले लो जो फ्रेश होंगे, इनके प्रोडक्ट ले लो जो प्योर ही होंगे। तो इसी वजह से हमने वो माइक्रो यूनिट मॉडल की हमारी नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स होंगी जिनको हम जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और नियर फ्यूचर हम ना नियरेस्ट हब बनाएंगे जहां पे प्रोडक्ट्स का कलेक्शन होगा आफ्टर टेस्टिंग और सील्ड होने के हमारे मेन हब पे आएंगे और जहां से हम सप्लाई करेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए क्लियर है कि देयर इज नो बिगर यूनिट कि हाँ हम किसी फैक्ट्री पे, तो इट इज ऑब्वियस। हाँ नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट्स जो होंगी उनको रन करना, उनकी सप्लाई चेन मैनेज करना, और फिर बनने के बाद एक नियरेस्ट हब पे आने सारी टेस्टिंग। तो एक क्लियर प्लान है कि हमारे साथ फार्मर कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन फार्मर्स को कैसे हम पे कर रहे हैं, हमारी एसओपीज कैसे डिफाइन हो रही हैं, हम वो जो प्रोडक्ट हमारे बन के रेडी हो रहे हैं उन्हें, जो प्रोडक्ट बन के आएगा हमारे नियरेस्ट हब पे वो भी लैब टेस्टिंग होगी, लैब टेस्टिंग होने के बाद वो सील किया जाएगा। और वंस वहां से जो गाड़ी निकलेगी जब हमारे मेन वेयर हाउस में से अगेन हम टेस्टिंग कराएंगे। तो क्लियर प्लान है कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे। इट इज नॉट अबाउट कि हाँ अभी हम कुछ फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे। इट इज अबाउट कि वो इंडिया को हेल्थ और वेल्थ। नहीं, मेरा मेरा सवाल ये था, क्वेश्चन यही है मेरा कि आपका जो आगे 2-3 साल का विजन क्या है, और ग्रियोस को आपको नेक्स्ट लेवल कहाँ पे ले जाना है इन टर्म्स ऑफ बोथ,
कि ताकि इन्वेस्टमेंट्स भी आपको मिले प्लस उसको एज अ प्रोडक्ट वाइज भी कंज्यूमर बेस आपका बढ़े। चीज़ों में क्या विजन है आपको और कैसे करेंगे? क्या सोचा आपने उसके लिए? देखिए हमारा थॉट बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट थिंग ये कि जो कंज्यूमर को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट चाहे वो नेक्स्ट 10 इयर्स की बात करें या 15 इयर्स की बात करें, जो हमने प्रॉमिस किया है, जिस प्रॉमिस के साथ कंज्यूमर हम अब ने जिस थॉट के साथ काम करना शुरू किया था कि वी विल रिप्लेस कंप्लीट किचन में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इवन ऑयल हो, घी हो, स्पाइसेस हो, मिल्क हो, जो भी प्रोडक्ट है हम सारे रिप्लेस करेंगे। बट इसको करना क्या, ऑब्वियसली हमने बिगर यूनिट्स पे जाना नहीं, तो हम माइक्रो यूनिट कॉन्सेप्ट में लेट्स सपोज वी हैव 6 यूनिट्स। उन 6 यूनिट्स में किसी यूनिट पे हमारा ऑयल का, किसी यूनिट पे हमारा घी का, कहीं पर हमारा स्पाइसेस का। सो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इस टाइप की हम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो यूनिट्स बनाएंगे। एक बेनिफिट ये कि जो विलेज में प्रोडक्ट बन सकते हैं, लो कॉस्ट पे भी बन सकते हैं। लो कॉस्ट पे बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम फार्मर्स को पे नहीं करना चाहते। लो कॉस्ट पे बनाने का मतलब वहां पर कॉस्ट आती ही कम है। जो वहां से प्रोडक्ट चलता है, जब सिटी तक पहुंचता है, वो लो कॉस्ट पे बनाने के हम फार्मर्स को भी अच्छा पे कर सकते हैं और कंज्यूमर को भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं। वंस ये जब नेटवर्क हमारा बन जाएगा, लेट सपोज वी हैव 1000 माइक्रो यूनिट्स, इन माइक्रो यूनिट्स के थ्रू ये नेटवर्क है, तो हम कंज्यूमर्स को एनी डे हम वेजिटेबल सप्लाई करना चाहें, हम मिल्क सप्लाई करना चाहें, आइदर हम पनीर सप्लाई, तो वही यूनिट्स हैं। उनका हमें अलग से कोई नई यूनिट्स डालने की, उन्हीं फार्मर्स को एक विजन के साथ काम कराना है कि अभी आप केवल ऐसा नहीं कि आप अभी ऑयल में डील कर रहे हैं, आपके विलेज में कैटल्स भी, काउज भी हैं, बफेलोज भी हैं, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ मिल्क भी है। तो हम उन्हीं को और आगे थोड़ा-सा लेके जाएँगे कि अब आपको हम ना एक मिल के यूनिट, माइक्रो यूनिट, आप यहाँ पे एक काम करो कि पल्सेस वाला जो है वो भी हम एक यूनिट सेटअप करा देते हैं, तो वही फार्मर्स हों। अब हमारे साथ बेनिफिट क्या होगा कि जब हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं, तो एक अलग से फिर से पिच करने की ज़रूरत नहीं कि अब हम ये करने जा रहे हैं। तो जिस दिन लगेगा कि अब कंज्यूमर को इस चीज़ की डिमांड है या इसकी चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे 6 प्रोडक्ट तो हम 5 प्रोडक्ट और लाएँ, तो हम कभी भी लेके आ सकते। सो ये एक नेटवर्क है, एक ट्रस्ट है जो हम बिल्ड कर रहे हैं बिटवीन फार्मर्स एज वेल एज इन कंज्यूमर्स। तो एनी डे जब भी जैसे कोई भी इन्वेस्टर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारा मोटो यही है कि हम एनी डे जब भी किचन को रिप्लेस करना है, तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो लोग कनेक्टेड हैं जिनका काम ही यही है प्रोडक्शन का। बिकॉज़ आप जो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं वो जब फार्मर्स ही हमारे साथ एक नेटवर्क के, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है उस टाइम पे। यस, अभी देखिए क्या रहता है इन जनरल, अगर मैं क्रॉप की, मुझे फार्मर्स को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो दे नो बेटर कि क्रॉप कैसे, बट हाँ, जहाँ पे ये आ जाता है कि लेट्स सपोज हमें घी मैन्युफैक्चर करना, तो दे नो कि बिलोना कैसे बेटर घी का क्या करेगा। बट हाँ, कुछ एसओपीज़ हैं जो हम उनको ट्रेंड करते हैं कि आपको जब करना है तो पैकेजिंग कितनी क्लीनिंग रखनी है, यूनिट्स पे क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसमें भी ऐसे ही कि कितना मॉइस्चर कंटेंट रखना है, जो मशीन है कितनी देर आपको रन करानी है, फर्स्ट प्रेस और ये जो इसका ऑयल केक निकल रहा है, तो वो ट्रेनिंग हमारी कंटिन्यूअसली। कुछ फार्मर्स रहते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते, फाइनेंशियली भी ऑब्वियसली स्ट्रांग रहते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम अपनी यूनिट लगा ले रहे हैं, हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो आपकी मदद से हम करते रहेंगे और आप हमारा डायरेक्टली इसका कंजम्पशन भी। कुछ फार्मर्स रहते हैं जिनको इसकी भी नीड रही, मुझे फाइनेंशियल नीड है, तो उनको हम हेल्प भी करते हैं कि आप एक काम करो, अब आप हमसे हेल्प ले लो और उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी इनकम होना शुरू होगी, वो जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो धीरे से हम इसी के थ्रू निकाल लें। तो इट इज़ नॉट, इसमें ये भी थॉट जा सकता है कि इट मीन्स वी आर परचेजिंग फ्रॉम द फार्मर्स। नहीं, हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं। वो हमारी सेल्फ यूनिट रहती हैं, बिकॉज़ वो यूनिट किसी के लिए वर्क नहीं करती है। वो यूनिट्स हमारी ही हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कंप्लीटली हमारे पास ही आता है। सो इट इज़ कि अगर मैं बोलूँ कि जनरली फार्मर्स शुरू में कनेक्ट होता है तो लगता है कि हाँ, क्या ही इनकम दे पाएँगे। बट हाँ, अगर हम लॉन्गर रन में बात करें तो येस, ये जब नेटवर्क रेडी हो, तो नेटवर्क रेडी होने के साथ एनी टाइम, एनी डे वो फ्रेशेस्ट प्रोडक्ट भी कंज्यूमर्स के पास हों, साथ ही साथ फार्मर्स के लिए वो एक बहुत अच्छी इनकम भी। एप्रॉक्स पे आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि कोई फार्मर कमाई कर सकता है या अर्निंग कर सकता है 1 महीने का? छोटी, लेट्स सपोज अगर कोई एक माइक्रो यूनिट लगाता है जिसमें उसने ऑयल की एक ही मशीन लगाई है। अगर वो ऑयल की एक मशीन में लगाता है और हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो मिनिमम 40 टू 50,000 की उस, बट हम जनरली 1 मशीन पे हम किसी भी फार्मर को जब भी इंस्टॉल कराते हैं, तो मिनिमम 3 मशीन्स इंस्टॉल कराते हैं, ताकि
प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी रहे और हमें भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट में बिकॉज़ अगर बहुत कम क्वांटिटी रहेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। तो वी ऑलवेज़ ट्राई कि क्वांटिटी इतनी रहे कि हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम रहे और फार्मर्स को भी एक अच्छी इनकम हो। विलेज से ही हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी तो इनिशियल स्टेजेस पे हमने क्या किया था कि जो मेरे जानने वाले फार्मर्स थे, हमने पहले उनसे ही कनेक्ट किया। ऑब्वियसली कहीं न कहीं से आपको लर्निंग लेनी और जब हम जानने वाले फार्मर्स के हमने उनके सामने ये प्लान रखा, तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे यार पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी तो हम आराम से खुश हैं। हमने बोला कि येस हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट कि ठीक है, खुश हो मुझे उसमें इश्यू नहीं है। कुछ करना है, हमारा प्लान ये नहीं है कि हम केवल इसमें खुश रहें, हमें खुशी ये भी देता है कि आप जो प्रोडक्ट है मैं घी की बात एक आंटी थी जिनके पास हम गए थे, वो जानने वाली थी। तो उन्होंने यही बोला कि हम तो खुश हैं, हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने बोला कि आपको नहीं लगता है कि आप ये जो घी बना रहे हैं, ये घी शहर में जो बच्चे जाते हैं या जो लोग रह रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए कि लेकिन नहीं बिल्कुल लगता है हमारा बच्चा भी बाहर रह रहा है, उसको नहीं मिल पाते अच्छे प्रोडक्ट। तो हमने कहा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं सिटी में, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, उनको चाहिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि उनको इनकम फर्स्ट है, इट इज़ अबाउट कि उनको एक इमोशन है कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ करके खुश हो रहे हैं। तो हम जब कनेक्ट करते हैं, शुरू में हमने अपने लोगों के साथ जब कनेक्ट किया, जो लोग जानने वाले थे, उनकी स्टोरीज़ हैं, तो और लोगों को बताते हैं, तो वो बहुत ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं। अब ना हो, बट अब उनके पास एक स्टोरी है कि और भी फार्मर्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी इनकम हो रही है। नहीं, आई थिंक ये अपने आप में काफ़ी अच्छी मतलब बात है कि जैसे अ, जिन लोगों तक वो रियल प्रोडक्ट्स या वो ऑर्गेनिक या प्योर प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं, आप इनके थ्रू फार्मर्स के थ्रू या छोटे जो भी उद्यमी हैं, उनके थ्रू आप उनको पहुँचा रहे हो। आई थिंक इट्स ओपनिंग गेट लाइक बिज़नेस फॉर at least for these all people also, and at the same time reaching those products to the end users who actually need it. So, as you continue to scale, like building your organic farm, what kind of long-term impact or legacy do you personally hope to create for India's food ecosystem, like farmers or future generation of consumers? So, Arushi, I've already told you कि we have a single vision कि वो जो ट्रस्ट है ना, we want to connect with the consumers directly. जो भी कंज्यूमर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, इट इज नॉट अबाउट द स्टोरी। फार्मर्स की स्टोरी बहुत सारी चलती रहती है, चलिए मार्केट की तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यही बोलते हैं कि हम फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम फार्मर्स से परचेज कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट स्टोरी, इट इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी, इट इज अबाउट फ्रेशनेस, इट इज अबाउट इमोशंस जो फार्मर्स बना के। तो नेक्स्ट 5 to 10 years बाद जो हम लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग जस्ट एक सिंपल थॉट कि हमने प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट में ये कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि यस ये जायरोस ऑर्गेनिक फार्म का प्रोडक्ट है और मैं श्योर हूं क्योंकि मैं पिछले 10 साल से जैसा 10 साल पहले आता था वह, तो मैं श्योर हूं कि ये 100% प्योर होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड से ही बना है और ये फ्रेश ही। सो ये जो हैप्पीनेस थॉट है, ये मैं हमेशा देखना चाहता हूँ एज टुडे और वेदर इट इज आफ्टर 10 years और 5 years। ये हमेशा एक ही थॉट है कि कंज्यूमर्स के दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ इनका प्रोडक्ट है मतलब अच्छा ही हो। So, thank you so much, Mr. Yogesh. No, definitely, Yogesh, thank you for such a lovely interview. अगर इसको हमें और लोगों तक ये पहुंचाना है तो आई थिंक गेनिंग देयर ट्रस्ट, कस्टमर्स ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस, और उसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए आई नो दिस फील्ड, इस पर्टिकुलर वे जो आप ये ले रहे हैं ना, ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये एक होता है कि आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट अगर आई थिंक आपको उस पे टिके रहना है कि नहीं यार मेरा फोकस यही है, मुझे यही करना है, ये तो मतलब वन हैज़ टू बी हैव दैट काइंड ऑफ गट पावर विद इन हिमसेल्फ, कि एक वो भरोसा अपने आप पे होना चाहिए कि यार मैं ये करना है तो मैं करके रहूँ। तो विद दिस थिंग आई थिंक डेफिनेटली फ्रॉम आवर साइड आई थिंक वी विश ऑल आवर बेस्ट विशेस टू यू एंड टू ग्रोस फार्म्स फॉर द अपकमिंग जर्नी, एंड डेफिनेटली इट्स बीन अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर दैट, एंड आप कुछ लास्ट में, दैट वुड बी ग्रेट टू हियर। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश कि हमने जो ये लिया है कि हम ये जो प्योर फूड देंगे वो हम इस रास्ते से मत, बस हमारा यही एम है कि हम इसी रास्ते पे एंड आई विश कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो हमारे साथ जिस तरीके से कनेक्ट हैं
और ये कनेक्शन हमेशा बना रहे और वो पर्सनल कनेक्शन उतना हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस रास्ते पे चलें।